बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? The topic which we were discussing, that was sukuk and securitization, in which we were discussing vital issues in Islamic capital markets. Your lecturer is same, Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. Before going towards today's lecture, let's have a summary of the last lecture. We discussed in the last lecture the introduction of overall sukuk format, the Islamic capital markets format, and after that we moved towards capital market in an Islamic framework, and some of the portion of securitization and sukuk were discussed in the last class. As far as today's lecture is concerned, we'll discuss securitization and sukuk, in which first of all we'll discuss categories of sukuk. These categories were highlighted or named in the last class, but today we'll have the explanation of all of these categories, that what does those categories mean. Then we'll talk about tradability of sukuk. Then we'll talk about issues in terms and structures of sukuk. Then we'll talk about potential of sukuk in fund management and developing the Islamic capital market. After that, we'll talk about summary and conclusion. So, if you guys are ready, let's start. Okay. Categories of sukuk. Below we discuss various categories of sukuk. Number 1, mukaraba or mudaraba sukuk. Mudaraba or mukarada sukuk are deeds can be instrumental in enhancing public participation in investment activities in any economy. ये इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक साइड से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर. These are certificates that represent projects or activities managed on the mudaraba principle by appointing any of the partners or any other person as mudarib for management of the business. ये सर्टिफिकेट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज़ को जो मैनेज होती हैं मुदारबा प्रिंसिपल के तहत. इसके अंदर जो किसी भी पार्टनर को एज ए मुदारिब बना लिया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. एज रिगार्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू द इशू, द इशूअर ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट्स इज द मुदारिब. जहां तक रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज की बात है इशू के अंदर, तो जो इशूअर होता है मुदारबा का उसको मुदारिब बोलते हैं. सब्सक्राइबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कैपिटल, जो इसको सब्सक्राइब करते हैं वो इसके ओनर्स कहलाते हैं. एंड द रियलाइज फंड्स आर द मुदारबा कैपिटल, और जो रियलाइज फंड होता है इसका उसको हम लोग मुदारबा कैपिटल बोलते हैं. द सर्टिफिकेट होल्डर्स ओन द एसेट्स ऑफ द मुदारबा एंड द एग्रीड अपॉन शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू ओनर्स ऑफ कैपिटल एंड दे बेयर द लॉस. जो सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं जो एसेट को ओन कर रहे होते हैं मुदारबा के अंदर, वो एग्रीड अपॉन जो उनका शेयर होता है प्रॉफिट का उसको भी शेयर करते हैं और फिर उससे रेलेवेंट जो लॉस होता है उसको भी बेयर करते हैं इफ एनी. In terms of the resolution of the Islamic Fiqh Council of the OIC 4th session 1988, the following are the salient features of Mudarba Sukuk certificates. Number 1, Mudarba Sukuk represent common ownership and entitle their holders to a share in the specific projects against which the MS have been issued. मुदारबा सुकूक रिप्रेजेंट करता है कॉमन ओनरशिप को और एंटाइटल करता है अपने होल्डर्स को कि वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में से शेयर को पार्टिसिपेट करें. The MS contract, Mudarba Sukuk contract, is based on the official notice of the issue or the prospectus. जो मुदारबा सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ऑफिशियल नोटिस के थ्रू होता है जो कि इशू होता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, which must provide all information required by शरिया, जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो शरिया कहती है वो होनी चाहिए. For a किरात कॉन्ट्रैक्ट such as the nature of capital पता होनी चाहिए, रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, एंड अदर कंडीशंस रिलेटेड टू द इशू. और इसके अलावा कोई और भी कंडीशंस अगर इशू से रेलेवेंट है तो दीज आर आल्सो सपोज्ड टू बी मेंशन्ड देयर, व्हिच मस्ट बी कंपैटिबल विद शरिया. इनको शरिया से कंपैटिबल होना चाहिए. द मुदारबा सुकूक होल्डर इज गिवन द राइट टू ट्रांसफर द ओनरशिप बाय सेलिंग द सुकूक इन द सिक्योरिटीज मार्केट एट हिज डिस्क्रिशन. जो मुदारबा सुकूक होल्डर है उसको राइट दिया जाता है कि वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है इस सुकूक को बेचकर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर. इसका मतलब है कि जो आपकी ओनरशिप है दैट इज नॉट फिक्स्ड, आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर भी कर सकते हैं ओपन मार्केट के अंदर उसको बेचकर. द मार्केट वैल्यू ऑफ मुकरदा सुकूक वेरीज विद द बिजनेस स्टेटस एंड एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंसर्न प्रोजेक्ट. ऑफ कोर्स इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो वेरी कर सकती है किन बेसिस के ऊपर, उसके ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बेसिस के ऊपर. द सेल ऑफ मुदारबा सुकूक मस्ट फॉलो द रूल्स लिस्टेड बिलो. इसकी जो सेल है उसमें ये रूल्स फॉलो होने चाहिए. नंबर 1, if mudaraba
capital is still in the form of money before the operation of the specific project, अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऑपरेशन से पहले जो इसका कैपिटल है वो अभी तक पैसे की फॉर्म में पड़ा हुआ है, द ट्रेडिंग ऑफ मुदारबा सुकूक will be like the exchange of money for money and it must satisfy the rules of buy and serve. तो ये जो ट्रेडिंग होगी इसकी ये पैसे की पैसे के साथ होगी और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए रूल ऑफ बाय एंड सर्व को. इफ द मुदारबा कैपिटल इज इन द फॉर्म ऑफ डेट, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेट ट्रेडिंग इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस. अगर मुदारबा कैपिटल जो है वो डेट की फॉर्म में है तो इसको बेस होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेट ट्रेडिंग के ऊपर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के. If the capital is in the form of a combination of cash, receivables, goods, real estates and benefits, trade must be based on the market price evolved by mutual consent. और अगर कैपिटल जो है वो goods, real assets या benefits की बेसिस के ऊपर है, कैश या receivables की बेसिस पे है, तो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ जो मार्केट प्राइस है वो इवॉल्व होनी चाहिए. The manager or special purpose vehicle who receives the funds collected from the subscribers to Mudarba Sukuk can also invest his own funds. ये जो मैनेजर है या जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो फंड्स रिसीव करते हैं जनरल पब्लिक से, वो अपनी भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहें तो दे कैन डू सो. ही विल गेट अ प्रॉफिट फॉर हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट एज मुदारिब. वो कैपिटल के ऊपर एक अलग से प्रॉफिट रिसीव करेगा, मुदारिब की हैसियत से तो लेगा ही, लेकिन जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसकी बेसिस के ऊपर रेशो अलग से भी रिसीव करेगा. नीदर प्रॉस्पेक्टस नॉर मुदारबा सुकूक शुड कंटेन अ गारंटी. प्रॉस्पेक्टस या मुदारबा सुकूक दोनों को गारंटी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द इशूअर और द मैनेजर ऑफ द फंड, इनकी तरफ से, फॉर द कैपिटल और अ फिक्स प्रॉफिट, कैपिटल या फिक्स प्रॉफिट के लिए, और अ प्रॉफिट बेस्ड ऑन एनी परसेंटेज ऑफ द कैपिटल, या फिर प्रॉफिट जो कि बेस करता है किसी भी परसेंटेज ऑफ कैपिटल के ऊपर. अकॉर्डिंगली, नंबर 1, द prospectus or the mudarba sukuk issued pursuant to it may not stipulate payment of a specific amount to the MS holder. जो प्रॉस्पेक्टस है या मुदारबा सर्टिफिकेट है जिसको इशू किया जा रहा है वो पेमेंट को जो है वो स्टिपुलेट नहीं भी कर सकता स्पेसिफिक अमाउंट की. नंबर 2, प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड एज डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ शरिया, दैट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ द कैपिटल. प्रॉफिट जो है वो शरिया के रूल्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, एंड नॉट द रेवेन्यू और द यील्ड. रेवेन्यू या यील्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. एंड 3, द profit and loss account of the project must be published and disseminated to the मुदारबा सुकूक holders. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्रोजेक्ट का उसको पब्लिश होना चाहिए और डिसेमिनेट भी होना चाहिए मुदारबा सुकूक होल्डर्स के दरमियान. इट इज परमिसिबल टू क्रिएट रिजर्व्स फॉर कंटिंजेंसीज. इसकी भी इजाजत है कि आप रिजर्व्स बनाएं कंटिंजेंसीज के लिए, सच एज लॉस ऑफ कैपिटल, बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द प्रॉफिट अ सर्टेन परसेंटेज इन ईच अकाउंटिंग पीरियड. नेक्स्ट, the prospectus can also contain a promise made by a third party. prospectus में promise by a third party भी मौजूद होना चाहिए, totally unrelated to the parties to the contract, जो उससे related नहीं है, in terms of legal entity और financial status, to donate a specific sum, जो कि donate करेगा, without any counter benefit, जिसके बदले में कोई benefit नहीं होगा उसको, to meet losses in a given project, अगर कोई losses होते हैं तो उनको ताकि manage किया जा सके, provided such commitment is independent of the मुदारबा contract. वो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है. However, it is not permissible for the issuer to guarantee the capital of the मुदारबा. लेकिन इशूअर के लिए ये परमिसिबल नहीं है कि उसकी गारंटी करे मुदारबा के कैपिटल की. Islamic financial institutions can offer मुदारबा सुकूक और certificates to the investors who would subscribe and participate in the investment transactions. इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मुदारबा सुकूक ऑफर कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को जो कि सब्सक्राइब करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शंस के अंदर. The funds mobilized would be the variable capital, Class B share of any bank to be marketed regionally through the selling of the issued mudarba sukuk. So the next type of sukuk या category of sukuk is musharaka sukuk. इसको हम लोगों ने अगली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस भी करना है मुशारका को, तो अभी सिर्फ जो सुकूक से रेलेवेंट इसकी एक्टिविटी है वो डिस्कस किए लेते हैं. मुशारका इज मोड विच कैन सर्व एज अ बेसिस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इजीली. ये एक ऐसा मोड है जो कि सिक्योरिटाइजेशन के लिए बड़ी आसानी से काम कर सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स वेयर ह्यूज अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के केस में जहां पर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है. एवरी सब्सक्राइबर इज गिवन अ मुशारका सर्टिफिकेट विच रिप्रेजेंट्स हिज प्रोपोर्शनेट ओनरशिप इन द एसेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. हर सब्सक्राइबर मुशारका सर्टिफिकेट का जो रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनेट ओनरशिप इन द एसेट ऑफ द प्रोजेक्ट.
These are certificates of equal value issued for mobilizing funds to be used on the basis of partnership. ये सर्टिफिकेट्स इक्वल वैल्यू के साथ इशू किए जाते हैं ताकि फंड्स को मोबिलाइज किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, so that their holders become owners of the relevant project or the asset as per their respective shares that are part of their asset portfolios. Musharaka Sukuk can be issued as redeemable certificates by or to the corporate sector or to individuals for their rehabilitation, employment, for the purchase of automobiles for their commercial use, or for the establishment of high standard clinics, hospitals, factories, trading centers, endowments, etc. Musharaka redeemable sukuk are almost similar to मुदारबा sukuk. मुशारका रिडीमेबल स्कूक्स जो हैं ये ऑलमोस्ट मुदारबा सुकूक के से मिलते जुलते ही होते हैं. देयरफॉर बेसिक शरिया रूल्स रिलेटिंग टू मुदारबा आल्सो अप्लाई टू मुशारका सर्टिफिकेट. जो बेसिक रूल्स हैं वो दोनों पे एक की तरह से अप्लाई हो सकते हैं. द ओनली मेजर डिफरेंस इज दैट द इंटरमीडियरी पार्टी विल बी अ पार्टनर ऑफ द ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉडी ऑफ मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर्स. जो इंटरमीडियरी पार्टी होगा वो पार्टनर होगा ग्रुप का उन सब्सक्राइबर्स में से जो कि मुशारका सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं, इन अ मैनर सिमिलर टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है. आफ्टर द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद दीज मुशारका सर्टिफिकेट्स कैन बी ट्रीटेड एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. इनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है. सर्टिफिकेट्स बेस्ड ऑन मुशारका मुदारबा कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट. सर्टिफिकेट्स जो कि मुशारका या मुदारबा की बेसिस पर खरीदे जाते हैं इनको बेचा जा सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पोर्टफोलियो ऑफ मुशारका कंप्राइजेस नॉन लिक्विड एसेट्स वैल्यूइंग मोर देन 50%. जिसमें एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि जो पोर्टफोलियो ऑफ मुशारका है ये नॉन लिक्विड एसेट्स जिनकी वैल्यू मोर देन 50% हो उस पर बेस होने चाहिए. प्रॉफिट अर्न बाय द मुशारका इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रेशियो. जो भी एग्रीड रेशियो उसके मुताबिक शेयर होता है प्रॉफिट. लॉस इज शेयर्ड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस, उसी की बेसिस पे लॉस भी शेयर होता है. Whenever there is a combination of liquid and non-liquid assets, अगर इनका combination है, it can be sold and purchased for an amount greater than the amount of liquid assets in the combination or in the pool. तो इनको बेचा जाएगा उस अमाउंट पे जो कि लिक्विड एसेट्स से ज्यादा होगी, जो कि इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पूल भी किया जा सकता है. Investment sukuk can be issued on a musharaka basis to mobilize short-term deposits for the development of long-term projects. Investment sukuk जो हैं ये इशू किए जा सकते हैं मुशारका बेसिस के ऊपर ताकि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को मोबिलाइज किया जा सके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए, और फॉर इन्वेस्टमेंट इन जनरल फाइनेंशियल एक्टिविटीज और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, और इन एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए भी. द प्रोसीड्स ऑफ द sukuk can be used to buy and lease certain equipment or for the construction of projects and factories, the expansion of projects or for working capital finance. यहाँ से जो हम फाइनेंसेस इकट्ठे करते हैं वो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्रीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए भी यूज हो सकता है. द मुशारका स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड मोर इक्विटेबल एंड ऑल्सो सेफर फॉर द इन्वेस्टर्स देन द मुदारबा स्ट्रक्चर. मुशारका स्ट्रक्चर मुदारबा स्ट्रक्चर से ज्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है, as it involves both profit and loss sharing between the fund manager and the sukuk holders. चूंकि इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग दोनों के दरमियान. Not only profit sharing, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं. In addition, मुशारका sukuk holders will have added comfort and security from the cushion provided by the manager's participation in the मुशारका capital. इसके अलावा मुशारका sukuk holders जो हैं वो कंफर्ट एंड सिक्योरिटी भी ऐड करते हैं एज ए कुशन, जो कि मैनेजर की पार्टिसिपेशन जो कि मुशारका कैपिटल में उसको इंश्योर करती है. इन सूडान अ नंबर ऑफ एसेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द बैंक ऑफ सूडान, बैंक ऑफ खर्तूम, Nelaine Bank and other public entities have been identified for the purpose of securitization on a musharaka basis. Instruments known as central bank musharaka certificates, इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें सेंट्रल बैंक मुशारका सर्टिफिकेट शामिल हैं, एंड गवर्नमेंट मुशारका सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड सिंस 1998 फॉर इन्वेस्टर्स एंड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रेजरी बिल्स. ये 1998 से इशू किए जा सके हैं और ट्रेजरी बिल्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. एंड अदर इंटरेस्ट पेयरिंग सिक्योरिटीज फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और जो और इंटरेस्ट पेयरिंग सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जगह पर भी ओपन मार्केट में. एंड मॉनिटरी मैनेजमेंट बाय द सेंट्रल बैंक, द CMCs. Musharaka certificate, central bank Musharaka certificates are sold or bought by the central bank through auctions. ये central bank इनको बेचता है auctions के through and can be traded in the secondary interbank market. Then there is Ijara Sukuk.
The concept of ijara can be used for mobilizing funds for the development of long-term infrastructure projects. This is possible through securitization of tangible assets such as airports, roads, buildings, schools and hospitals, and offering sukuk to a large number of institutional and individual investors. यहाँ पर ये जो इजारा सुकूक है ये ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स, रोड्स, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट अ सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ इजारा. इजारा की बेसिस पर सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जा सकता है. इफ अ लेसर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर लेसर इजारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद विशेस टू रिकवर हिज कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट टू गेट लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए कॉस्ट ऑफ परचेज को रिडीम करना चाहता है, और फॉर द परचेज ऑफ प्रॉफिट के लिए ही कैन सेल द लीज एसेट होली और पार्टली, उसे बेच सकता है ईदर टू वन पार्टी और टू अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एक को बेच दे या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बेच दे. द परचेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द एसेट कैन बी एविडेंस बाय इशूइंग सर्टिफिकेट्स. अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को बेचेंगे तो आपको उनके साथ सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, विच में भी कॉल्ड इजारा सर्टिफिकेट्स और सुकूक. इसको हम लोग इजारा सर्टिफिकेट या सुकूक बोलेंगे. तो बात क्या हुई कि इजारा सर्टिफिकेट के अंदर इजारा सर्टिफिकेट किस वक्त इशू किए जाते हैं, जब कोई लेसर जो है वो कोई एसेट खरीदने के बाद उसको चाहता है कि जल्दी जल्दी इसकी लिक्विडिटी भी उसको मिल जाए, क्योंकि इसने देना तो रेंट के लिए है. उसकी लिक्विडिटी मिल जाए तो किसी एक को भी बेच सकता है या मल्टीपल लोगों को बेच सकता है. जब मल्टीपल लोगों को बेचेगा तो उसके बदले में सर्टिफिकेट्स इशू करने पड़ेंगे रसीद के तौर पर. ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये इजारा सुकूक कहलाएंगे. द सर्टिफिकेट्स मस्ट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द प्रो रेटा अनडिवाइडेड पार्ट्स ऑफ द एसेट with all related rights and obligations. सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए ओनरशिप को, जिसके अंदर पहले से मौजूद तमाम रिस्क एंड राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं. Hence, इजारा सुकूक आर द सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ वेल डिफाइंड एंड नोन एसेट्स टाइड अप टू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, रेंटल ऑफ विच इज द रिटर्न पेएबल टू द सुकूक होल्डर्स. तो जिस एसेट से रेलेवेंट था उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है और जो रेंटल्स हैं उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. By virtue of flexibility in the rules of ijara, securitizing the ijara contract is a key factor for solving liquidity management problems and financing the public sector needs in developing countries. Flexibility जो कि इजारा के रूल्स में है उसके बेसिस के ऊपर सिक्योरिटाइजिंग ऑफ इजारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये की फैक्टर है लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर. पेमेंट ऑफ इजारा रेंटल्स कैन बी अनरिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टेकिंग यूजुफ्रॉक्ट बाय द लेसी. जो पेमेंट ऑफ इजारा रेंटल है ये पीरियड के साथ जितना अरसा वो इस्तेमाल करेगा उससे रिलेटेड नहीं है. दैट इज इट कैन बी मेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द लीज पीरियड, इसको उससे पहले भी किया जा सकता है, ड्यूरिंग द पीरियड और आफ्टर द पीरियड, ड्यूरिंग भी और बाद में भी, एज द पार्टीज में म्यूचुअली डिसाइड. दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी यूज्ड टू इवॉल्व डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स इवॉल्व कराती है. And sukuk that may suit different purposes of issuers and investors. और सुकूक भी इशू किए जा सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए इशूअर और इन्वेस्टर को जो सूट करते हो. If funds are raised through issuance of sukuk for purchasing assets like building, motor vehicles or other equipment for the purpose of leasing, अगर फंड्स रेज किए जाते हैं बिल्डिंग, मोटर व्हीकल या कोई और एसेट खरीदने के लिए लीज करना ऑब्जेक्टिव हो, out of their ultimate users, these may be termed ijara funds. तो इसको हम इजारा फंड बोलेंगे. The ownership of the assets remain with the fund manager or SPV, and the rentals received from the user are distributed by the fund managers on pro rata basis. तो ओनरशिप जो है वो ऑफ कोर्स वो जो फंड मैनेजर है उसी तक रिटेन रहती है, लेकिन जो रेंटल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फंड मैनेजर्स जो है उनकी बेसिस के ऊपर प्रो रेटा बेसिस पर सब्सक्राइबर्स में. As discussed in detail in chapter 12, जहां पे हम इजारा की बात कर रहे थे, most of the jurors are of the view that such a fund cannot be created on the basis of मुदारबा. कई jurors इस बात को कहते हैं कि ये जो फंड है इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता मुदारबा की बेसिस पर, बिकॉज मुदारबा अकॉर्डिंग टू देम इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेल ऑफ गुड्स. चूंकि मुदारबा सेल ऑफ गुड्स से रेस्ट्रिक्टेड है एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द बिजनेस ऑफ सर्विसेज एंड लीजेस. However, in the Hanbali school, मुदारबा can be used in services and also leases. मुदारबा इस्तेमाल किया जा सकता है सर्विसेज और लीजेस दोनों में. This view is preferred by the majority of contemporary scholars as well. Rental in इजारा must be stipulated in clear terms for the first term of lease. इजारा में जो रेंटल्स हैं वो स्टिपुलेट होने चाहिए क्लियर टर्म्स के अंदर पहली टर्म ऑफ लीज के लिए, एंड फॉर फ्यूचर रिन्यूएबल टर्म्स इट कुड बी कांस्टेंट.
फ्यूचर के लिए कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है किसी बेंचमार्क की बेसिस पर, और रिलेटिंग इट टू एनी वेल नोन वेरिएबल लाइक द इन्फ्लेशन रेट, किसी भी वेरिएबल के साथ इसको रिलेट किया जा सकता है जैसे इन्फ्लेशन रेट है, एनी पीरियोडिकली अनाउंस्ड प्राइस इंडेक्स और अदरवाइज बाय एनी सेटल्ड परसेंटेज. The mainstream Sharia experts have permitted benchmarking with any interest rate reference, although it is not an ideal practice to them. जो मेन स्ट्रीम शरिया एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इजाज़त दी है बेंचमार्किंग की किसी भी इंटरेस्ट रेट रेफरेंस के साथ, चाहे ये आइडियल प्रैक्टिस है या नहीं उनके लिए. गवर्नमेंट्स कैन यूज इजारा सुकूक एज एन अल्टरनेटिव टूल टू इंटरेस्ट बेस्ड बोरिंग. गवर्नमेंट्स इजारा सुकूक को एज एन अल्टरनेटिव यूज करती हैं इंटरेस्ट बेस्ड बोरिंग के, प्रोवाइडेड दे हैव ड्यूरेबल एसेट्स यूजेबल इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फंक्शंस. यूज ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट्स इज नेसेसरी. एसेट्स का गवर्नमेंट्स के से इस्तेमाल होना जरूरी है, while it does not matter whether these assets are income generating or not. The following types of sukuk can be issued on the concept of इजारा. ये इशू किए जा सकते हैं सर्टिफिकेट्स इजारा के कॉन्सेप्ट पर. नंबर 1, sukuk of ownership in leased assets. Leased assets में sukuk of ownership. These are certificates of equal value that are issued either by the owner of a leased asset or an asset to be leased by promise or by his financial agent, with the aim of recovering the value of the asset through subscription. The subscribers are buyers of the asset. The certificate holders become owners of the asset jointly with its benefits and risks. Then, sukuk of ownership of usufruct of assets. उसके right of use की ownership का sukuk. Such certificates have various types including the following. ये भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो कि ये शामिल करते हैं. Sukuk of ownership of usufructs of existing assets. These are documents of equal value issued either by the owner of usufruct of an existing asset or a financial intermediary acting on the owner's behalf. ये ओनर खुद भी इशू कर सकता है या कोई इंटरमीडियरी भी इशू कर सकती है. The mobilized funds from subscription are the purchase price of the usufructs. ये जो mobilized funds हैं ये सब्सक्रिप्शंस होती हैं जिनको एज ए परचेज प्राइस इस्तेमाल किया जाता है राइट ऑफ यूज के. एंड द सर्टिफिकेट होल्डर्स बिकम ओनर्स ऑफ द यूजफ्रक्ट. और जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो इसके राइट ऑफ इस्तेमाल के ओनर्स बन जाते हैं अलॉन्ग विद द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स. It is permissible to trade in certificates of ownership of usufructs of tangible assets prior to a contract of subleasing the assets. इसकी इजाज़त है कि जो सर्टिफिकेट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ यूजफ्रक्ट हैं ये टेंजिबल एसेट्स के हों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से पहले एसेट को सबलीज करने के. When the assets are subleased, जब इनको सबलीज किया जाता है, the certificates then represents the rent receivables. तो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेंट रिसीवेबल्स के तौर पर रिप्रेजेंट होते हैं, which makes it a debt certificate, जो इसको एक डेट सर्टिफिकेट बना देता है. Therefore, in that case, the certificate is subject to the rules and requirements of debts. तो इसलिए इस केस में सर्टिफिकेट रूल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डेट्स की बेसिस पर होता है. इट इज परमिसिबल फॉर द इशूअर टू रिडीम ईदर एट द मार्केट प्राइस और एज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ परचेज. इसकी इजाज़त है कि इशूअर इसको रिडीम करे मार्केट प्राइस पर या उस प्राइस पर जो कि परचेज के वक्त डिसाइड हुई. The sukuk of ownership of usufruct of tangible assets from the sukuk holder after allocation of sukuk and payment of subscription amounts. Then, certificates of ownership of usufructs to be made available in the future as per description. ये जो certificates of ownership of usufruct हैं ये available करना future में as per their description. These are documents of equal value issued for the sake of leasing assets. ये इक्वल वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एसेट को लीज के लिए दिए जाते हैं. दैट द लेसर इज लायबल टू प्रोवाइड इन फ्यूचर, जो कि लेसर लायबल होगा फ्यूचर में देने का. वेयर बाय द रेंटल इज रिकवर्ड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन इनकम, जहां पर रेंटल जो है वो सब्सक्रिप्शन इनकम से रिकवर होता है. इन विच केस द होल्डर्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स बिकम ओनर्स ऑफ द यूजफ्रक्ट, जिस केस में इसके होल्डर्स जो हैं सर्टिफिकेट्स के वो ओनर्स बन जाते हैं इसके राइट ऑफ यूज के of the future assets. The subscribers are buyers of the usufructs and will have both the risks and rewards. तो जो subscribers हैं वो usufruct के buyers होते हैं और own करते हैं risk और reward दोनों को. Such sukuk can be traded after the asset is identified. ये trade हो सकता है या होता है जब asset identify हो जाए. It is not valid to sublease or trade in usufructs of an asset to be made available prior to identification of the asset.
in which case trading must be carried out in line with the rules of currency exchange. The trading rules in the case of subleasing of such usufructs would be the same as those discussed above. Next type of certificates is certificate of ownership of services of a specified supplier. These are documents of equal value issued for the sake of providing or selling services through a specified supplier, such as educational programs in a particular university, and obtaining the value in the form of subscription income, in which case the holders of the sukuk become owners of the services. Then, certificates of ownership of services to be made available in the function as per description. These are documents of equal value issued for the sake of providing or selling services through a non-existing supplier with the description of the subject matter, such as educational programs of a specific quality, schedule, duration, etc., without mentioning the educational institution, and obtaining the value in form of subscription income, in which case the holders of the certificates become owners of the services. The following features may be kept in mind for securitization under इजारा. इजारा की securitization के वक्त ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए. It is necessary for an ijara contract that the asset being leased and the amount of rent both are clearly known to the parties at the time of the contract. ये ज़रूरी है एक इजारा कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जो एसेट लीज किया जा रहा है और अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो क्लियरली पता हो पार्टीज को एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ बोथ ऑफ दीज आर नोन, अगर दोनों को पता है, इजारा कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड ऑन एन एसेट और अ बिल्डिंग दैट इज येट टू बी कंस्ट्रक्टेड. तो इजारा किया जा सकता है उन एसेट्स के बारे में भी जो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए, एज लॉन्ग एज इट इज फुली डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट में फुली डिस्क्राइब किया जाए, provided that the lessor should normally be able to acquire, construct or buy the asset being leased by the time set for its delivery to the lessee. उस वक्त तक इसको available भी होना चाहिए. The lessor can sell the leased asset provided it does not hinder the lessee in taking benefit from the asset. Lessor sell कर सकता है leased asset को provided के ये lessee को इससे benefit लेने से ना रोके. The new owner will be entitled to receive the rentals for the remaining period. नए ओनर्स जो हैं उनको entitled होना चाहिए rentals receive करने का उस remaining period का. Similarly, they can dispose of their share in the asset to the new owners individually or collectively. इसी तरह वो dispose of कर सकते हैं अपने share को new owners में या फिर existing owners में, individually या फिर collectively भी. As an ijara certificate represents the holder's proportionate ownership in the leased asset, the holder will assume the rights and obligations of the owner or lessor to the extent of his ownership. जितनी ownership है उतना ही right exercise करेगा. The holder will have the right to enjoy part of the rent according to his proportion of ownership in the asset. तो जो holder है वो rent भी उतना ही enjoy करेगा जितना उसका ownership है. In the case of total destruction of the assets, he will suffer the loss to the extent of his ownership. अगर asset तबाह भी हो जाता है तो loss भी अपनी ownership के मुताबिक ही बर्दाश्त करेगा. So it is essential that the ijara certificates are designed to represent real ownership of the leased assets and not only a right to receive the rent. इसलिए ज़रूरी है कि इजारा सर्टिफिकेट ऐसे डिज़ाइन किए जाएं जो कि रिप्रेजेंट करें रियल ओनरशिप को, रियल एसेट की, लीज एसेट की, और उसका जो राइट है टू रिसीव द रेंट. As per Sharia rules, expenses relating to the corpus or basic characteristics of the asset are the responsibility of the owner. शरिया रूल्स के मुताबिक एक्सपेंसेस जो कि उस कॉर्पस या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट से रिलेट करते हैं ये ओनर की रिस्पांसिबिलिटी है. While maintenance expenses related to its operation are to be borne by the lessee, जबकि जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं वो जो इसके एक्सपेंसेस ऑपरेशन से रिलेट करते हैं वो लेसी बॉर्न करेगा. Therefore, the expected return flow from such sukuk may not be completely fixed and predetermined. From this perspective, ijara sukuk should be taken as quasi-fixed return instruments in Islamic finance, same as the previous discussion. There is one possibility that the owner or lessor of the asset may assure the purchaser, SPV, special purpose vehicle, or sukuk holder about performance of the lessees as in the case of IDB trust. But if the asset is destroyed without any fault or negligence of the lessee, the loss has to be borne by the lessor, the sukuk holders. It can be agreed between the parties that the rental should consist of two parts, one for payment to the lessor and the other as an on-account payment to be held by the lessee for any cost relating to the ownership of the asset. दो हिस्सों पे मुश्तमिल होना चाहिए, एक उसका रेंटल और दूसरा इसका पार्ट ऑफ पेमेंट.
As regards the procedure for issuance of ijara sukuk, an SPV is created to purchase the asset and this serves as a manager and issues sukuk to the investor. इसलिए प्रोसीजर जो है इजारा सुकूक के इशुएंस का, एक एसपीवी क्रिएट की जाती है एसेट को परचेज करने के लिए, वो एक मैनेजर के तौर पे काम करता है और इन्वेस्टर्स को सुकूक इशू करता है, एनेबलिंग इट टू मेक पेमेंट फॉर परचेजिंग द एसेट, जो इसको इस काबिल बनाता है कि वो एसेट को खरीद सके. द एसेट इज देन लीज टू द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेट बॉडी फॉर इट्स यूज. फिर एसेट को लीज किया जाता है गवर्नमेंट को या किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी को इसको इस्तेमाल करने के लिए. The lessee makes periodical rental payments to the SPV, which in turn distributes the same among the sukuk holders. As the lessor can stipulate the rental in advance, the rental on sukuk issue can be indicated in advance with the possibility of very small variation that might be possible due to payment of ownership related unpredictable expenses by the lessor or the possibility of any default by the lessee. Ijara certificates can be negotiated and traded freely in the market and can serve as an instrument easily convertible into cash. इजारा सर्टिफिकेट्स जो हैं ये मार्केट में ट्रेड भी हो सकते हैं और नेगोशिएट भी हो सकते हैं फ्रीली, और ये सर्व कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. बट दिस शुड बी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द सुकूक होल्डर्स. लेकिन ये सुकूक होल्डर्स को ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बाद होना चाहिए. necessarily implying that the sukuk represent real assets and not the monetary capital, and that the holders have become owners of the assets. It is also permissible for the issuer to redeem before maturity certificates of ownership of leased assets at the market price or at the price agreed upon between the certificate holder and the issuer. Similarly, ijara sukuk representing ownership of the usufruct of a certain assets can be traded prior to the contract of subleasing, because in that case they would represent the monetary rent receivable. Next category of sukuk is salam securities or sukuk. Salam is a contract in which advance payment of a price is made for goods to be delivered later on. As per the AAO IFI standard, a salam purchase can onward sell the salam commodity by another contract which is parallel to the first. In this case, the first and the second contract should be independent of each other. Specifications of the goods and delivery dates of the two contracts may conform to each other, but both the contracts should be independently enforceable. ये सारी बातें we already have discussed in very much detail in the previous chapters. Salam sukuk are certificates of equal value issued for the sake of mobilizing capital that is paid in advance in the shape of the price of the commodity to be delivered later. सलम सुकूक जो है ये सर्टिफिकेट्स होते हैं इक्वल वैल्यू के, जिनको इसलिए इशू किया जाता है कि प्राइस की शेप के अंदर कि वो जो कमोडिटी फ्यूचर में डिलीवर होनी है उसकी प्राइस इन एडवांस ले ली जाए. द सेलर ऑफ द सलम कमोडिटी इशूज द सर्टिफिकेट. जो सेलर है इस कमोडिटी का वो सर्टिफिकेट इशू करता है, व्हाइल द सब्सक्राइबर्स आर द बायर्स ऑफ दैट कमोडिटी. और जो सब्सक्राइबर्स हैं उसके बायर होते हैं, दैट इज दे आर ओनर्स ऑफ द कमोडिटी व्हेन डिलीवर्ड. जब डिलीवर होगी तो वो उसके ओनर्स होंगे. In the case of parallel salam, the holders of salam sukuk are entitled to the salam commodity or the selling price at the time when the commodity is delivered. Parallel salam के अंदर ये जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो उस commodity को भी ले सकते हैं, या फिर जब उसको बेच दिया जाएगा किसी और पार्टी को तो उससे जो पैसा आएगा वो भी इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. Salam sale is attractive to the seller whose cash flow is enhanced in advance. सलम सेल अट्रैक्टिव है सेलर के लिए जिसका कैश फ्लो जो है वो इन एडवांस एनहेंस्ड होता है, एंड टू द बायर एज द सलम प्राइस इज नॉर्मली लोअर देन द प्रीवेलिंग स्पॉट प्राइस, क्योंकि उससे कम होती है. द BMA in June 2001 developed salam based securities with LIBOR related 3-month tenures used by Islamic banks for maintaining SLR. The Bahrain government sells aluminium to Bahrain Islamic Bank, which has been nominated to represent the other banks wishing to participate in the salam contract. The government undertakes to supply a specified amount of aluminium on the basis of salam at a future date. At the same time, BIB appoints the government its agents to market the aluminium at the time of delivery through its channels of distribution at a price which provides a return to the security holders. Such short-term sukuk can be developed on the basis of commodities being heavily traded like crude oil and cotton and the produce of big industrial projects having firm demand. So far, secondary market trading of salam sukuk is considered impermissible on the grounds that the certificates represent a share in the salam debt.
in which case they are subject to the rules of debt trading. अभी तक सेकेंडरी मार्केट्स में इसकी ट्रेडिंग की इजाजत नहीं है, चूंकि इसको जो है वो डेट के तौर पे लिया जाता है और सलम डेट के जो है वो रूल्स अभी तक डिजाइन नहीं है. The issue needs further analysis in respect of reselling the goods purchased under salam before taking possession by the original buyer, especially in the situation when he maintains inventory of that kind of goods, in which case banks would be selling those goods out of the stock maintained by them without specifying any units of the goods. The salam seller is bound to deliver the goods at the agreed date or time. The possibility of a change in price of tangible goods during the salam contract, the delivery period gives rise to a businesses needed for getting a return through sale. अगर इसमें कोई delay है तो of course businesses को create करता है. Secondly, salam deals have been allowed as an exception from the general rule of not selling goods without having their ownership and possession by dint of some conditions that are put in place to avoid excessive gharar in transactions. इसमें यह भी exception होता है कि चीजें अगर नहीं भी हैं तो you can sign the contract of that. If it is allowed, the salam sukuk may be negotiable. तो ये of course negotiable होगा. The purchaser of sukuk would be the owner of the commodity to be delivered at the specified date, and the price of sukuk would be determined by the market, depending upon the demand and supply of the underlying commodity. So the next sukuk is istasna sukuk. Istasna is a contractual agreement for manufacturing goods allowing cash payment in advance and future delivery, or a future payment and future delivery of the goods manufactured as per the contract. It can be used for providing the facility of financing and manufacture or construction of houses, plant, projects, bridges, roads and highways. ये of course ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इसलिए किया जाता है कि फाइनेंसेस आ जाएं और चीज़ आप लोगों ने फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करके देनी है, फाइनेंसेस आएंगे तो यू विल बी एबल टू यूज देम. By way of a parallel istasna contract with subcontractors, Islamic banks can undertake the construction of any project or asset and its sale for a deferred price, and subcontract the actual construction to any specialized firms. In istasna, full ownership of the constructed item is immediately transferred upon delivery of the item to the purchaser. istasna में पूरी ownership जो कि constructed item की है वो फौरन ट्रांसफर हो जाती है उसकी डिलीवरी के साथ ही, against the deferred sale price that normally covers not only the construction cost but also profits. इसकी डेफर्ड सेल प्राइस के साथ जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कवर नहीं करती है बल्कि प्रॉफिट्स भी कवर करती है, which could legitimately include the cost of tying funds for the duration of the repayment period. The payable deferred price can be documented in the form of sukuk. ये जो payable deferred price है इसको sukuk की फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया जा सकता है. Certificates of indebtedness known as istasna sukuk, जिसे istasna sukuk बोलते हैं, which are documents that carry equal value, जिनकी equal value होती है, and are issued with the aim of mobilizing the funds, और ये इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि फंड्स को मोबिलाइज किया जा सके, required for producing a certain item, उसको प्रोड्यूस करने के लिए. The issuer of the certificates is the manufacturer इसको इशू करता है, while the subscribers or certificate holders are the buyers of the item to be produced, और इसके जो subscribers होते हैं वो of course इसके buyers होते हैं. It is permissible to trade in or redeem istasna certificates if the funds have been converted through business or trade into assets owned by certificate holders during the operation of istasna, as the sukuk represent properties that can be disposed of. If the realized funds are immediately paid as a price in a parallel istasna contract, or the manufactured item is submitted to the ultimate purchaser, then trading in istasna certificates is subject to the rules of disposing of debts. This is because the sukuk represent a price that is a monetary debt owed by the ultimate purchaser to the manufacturer. The prohibition of riba precludes the sale of these debt certificates to a third party at any price other than their face value. Therefore, such certificates which may be cashed only on maturity cannot have a secondary market. इसलिए इनकी भी secondary market नहीं होगी. However, they can be transferred at face value to a थर्ड पार्टी, लेकिन ये फेस वैल्यू पर थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं. बिल्डर्स, बिग इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड होलसेल सप्लायर्स can sell to the Islamic financial institutions certain assets on an istasna basis on deferred payment and issue istasna sukuk redeemable periodically according to their payment dates. और of course इन deferred prices को कवर किया जा सकता है, इनको redeemable periodically sukuk issue करके
इस्तिस्ना सुकूक इशू करके डिफरेंट पेमेंट डेट्स पर. द होल्डर्स ऑफ इस्तिस्ना सुकूक मे एक्वायर अगेंस्ट देम property or merchandise for a deferred price. Once required, such property or merchandise can be disposed of in any manner. अगर जरूरत पड़े तो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है. As indicated earlier in the book, the deferred price of goods acquired against such certificates would be higher than the spot price of the same goods. Of course, price ज़्यादा होगी. The certificate holder acquiring the goods now at higher than the spot price is in fact relinquishing to the seller of the goods some, all or even more of the price differential which the former obtained from the client above the construction cost of the project he financed. This means that the market forces can play a role in encouraging or curtailing the exchange of these certificates for goods. So the next sukuk is securitization on the basis of murabaha or murabaha sukuk. Murabaha की basis पर securitization या फिर murabaha sukuk. Any paper representing a monetary right or obligation arising out of a credit sale transaction by banks cannot create a negotiable instrument. Therefore, murabaha receivables cannot be securitized for creating negotiable sukuk to be traded in the secondary market. इसलिए मुराबाहा रिसीवेबल्स जो हैं उनको सिक्योरिटाइज नहीं किया जा सकता नेगोशिएबल सुकूक्स क्रिएट करने के लिए जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं. The purchaser on credit in a murabaha transaction signs a note or paper to evidence his indebtedness towards the seller. ये जो purchaser है on credit मुराबाहा ट्रांजेक्शन का वो एक नोट साइन करता है और वो जो पेपर है वो एविडेंस है इंडेटनेस का सेलर की तरफ. That paper represents a debt receivable by the seller. ये पेपर शो करता है कि ये डेट रिसीवेबल है सेलर की तरफ से. Transfer of this paper to a third party must be at par value. किसी तीसरी पार्टी को अगर ये ट्रांसफर होना है तो दैट शुड बी एट द पार वैल्यू एंड सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ हवाला, और इस पे रूल्स ऑफ हवाला अप्लाई होंगे. मीनिंग दैट इट्स असाइनमेंट आल्सो हैज टू बी एट फेस वैल्यू, जिसका मतलब है कि इसकी असाइनमेंट फेस वैल्यू पर होनी चाहिए. हाउएवर इफ अ कमोडिटी हैज बीन परचेज्ड बट नॉट येट सोल्ड, लेकिन अगर कमोडिटी परचेज की जा चुकी है लेकिन अभी बेची नहीं, ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट्स इशूड अगेंस्ट इट इज अलाउड. तो ये जो ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट्स हैं वो इसके अगेंस्ट अलाउड हैं. As the certificates represents the asset that can be traded, इसलिए certificates represent करते हैं उन assets को जिनकी trading हो सकती है. A mixed portfolio consisting of a number of transactions, including murabaha, may issue negotiable certificates subject to certain conditions. एक mixed portfolio जो है जो number of transactions पे base करता है, इसमें मुराबाहा भी शामिल है. ये negotiable certificates issue कर सकते हैं मुख्तलिफ conditions के साथ. For this purpose, the pool of the assets should consist of ijara and other fixed assets valuing more than 50% its total worth. इस पर्पस के लिए जो पूल ऑफ एसेट्स होगा उसमें इजारा और दूसरे फिक्स एसेट्स होने चाहिए इसकी टोटल वर्थ से 50% ज्यादा. However, if the Hanafi view is adopted, trading will be allowed even if the non-liquid assets are more than 10% of its total worth. हनफी स्कूल के मुताबिक अगर इसमें से नॉन लिक्विड एसेट्स 10% से भी ज्यादा हैं तो फिर भी इसकी ट्रेडिंग हो सकती है. मुराबाहा सुकूक आर मोर लाइकली टू बी यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स बाय द पब्लिक सेक्टर. मुराबाहा सुकूक इस्तेमाल किए जा सकते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर. इफ द गवर्नमेंट नीड्स आइटम्स ऑफ ह्यूज प्राइस, अगर बहुत महंगी चीजें चाहिए, इट मे परचेज देम थ्रू क्रेडिट सेल्स बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, तो किस्तों पर खरीदी जा सकती हैं. The seller will amortize his cost and return over the period of installments. और seller जो है उसको amortize करेगा और इनको installments के अंदर. The government will issue certificates according to the number of installments. तो government certificates भी issue कर सकती है. Each certificate having a maturity date will represent a property right of the seller. हर certificate जिसकी maturity date होगी वो इसका property right कहलाएगा. Which can change hands provided the amount of the claim does not change. जो कि हैंड्स चेंज कर सकता है, इन्वेस्टर चेंज कर सकता है, लेकिन अमाउंट चेंज या उसका राइट जो है वो चेंज नहीं होगा. द सेलर और द ओरिजिनल सर्टिफिकेट होल्डर कैन ट्रांसफर हिज कलेक्शन राइट्स टू अनदर पार्टी, ये दूसरी पार्टी को बेच सकते हैं, सब्जेक्ट टू रिकोर्स टू हिम अगेंस्ट पेमेंट दैट वुड बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट माइनस द कलेक्शन कॉस्ट एट द ट्रांसफरी एंड. एनी मुराबाहा फंड्स कैन ऑल्सो इशू मुराबाहा सुकूक. कोई भी मुराबाहा फंड मुराबाहा सुकूक इशू कर सकता है.
the proceeds of which could be used for sale of pre-specified and general assets on the basis of murabaha to give a quasi-fixed return to the murabaha sukuk holders. जिसके प्रोसीड्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे एक प्री स्पेसिफाइड और जनरल एसेट्स की बेसिस पर मुराबहा जिनके अगेंस्ट किया जाएगा टू गिव क्वाजी फिक्स्ड रिटर्न मुराबहा सुकूक होल्डर्स को. Our Capita Bank BSC Bahrain issued 5-year multi-currency murabaha backed sukuk in 2005 with a 5-year bullet maturity. The proceeds of the sukuk are used for sale and purchase of assets via a series of commodity murabaha transactions. As murabaha may yield a fixed return, the sukuk holders have been offered a return equivalent to 3-month LIBOR plus 175 BPS. So that means this was not the fixed rate. The special purpose vehicle will have full recourse to our capita, and therefore the sukuk are a freely transferable instrument on the basis of a mechanism approved by our capita's Sharia Supervisory Board. It is presumed that the special purpose vehicle will be maintaining a sufficient amount of inventory or fixed assets, making it sukuk negotiable. Next type of sukuk is mixed portfolio securities, sukuk. Banks may securitize a pool of musharaka, ijara and some murabaha, salam, istasna and joala, a contract for performing a given task against a prescribed fee in a given period contracts. बैंक सिक्योरिटाइज कर सकते हैं एक पूल ऑफ मुशारका, इजारा, मुराबहा, सलम, इस्तिस्ना और ज्वाला को. द रिटर्न और रिस्क ऑन सच सिक्योरिटीज डिपेंड्स ऑन द चूजन मिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. इनका रिटर्न या रिस्क जो है ये डिपेंड करेगा इनकी सिक्योरिटीज के ऊपर कि वो क्या मिक्स हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स का लिया. अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ सच मिक्स पोर्टफोलियो सुकूक आर आईडीबी सॉलिडारिटी ट्रस्ट सुकूक. इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है इस मिक्स पोर्टफोलियो सिक्योरिटी सुकूक का ये आईडीबी सॉलिडारिटी ट्रस्ट सुकूक है फॉर $400 million issued in 2003. Salient features of IDB Solidarity Trust sukuk for $400 million issued in 2003. इसके salient features are given below. Solidarity Trust Services served as trustee to issue the fixed rate trust certificates that were issued to purchase a portfolio of sukuk assets comprising ijara, murabaha and istasna contracts originated by the IDB. Each certificate represented an undivided beneficial ownership in trust assets and ranked pari passu with other trust certificates. Most of the assets, over 50%, would at all times during the period comprise ijara assets. If at any time the proportion of assets evidenced by ijara contracts fell below 25%, a dissolution event would occur, and IDB, by virtue of its separate undertaking, would be obliged to purchase all of the assets owned by the trustee pursuant to terms of the purchase undertaking deed. Profit on sukuk assets, net of expenses of the trust, would be used to give a periodic return to the certificate holders. तो profits कैसे होंगे जो उनके रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आएंगे वो उनकी ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट होल्डर्स को पीरियोडिक रिटर्न के तौर पर दिए जाएंगे. सर्टिफिकेट्स वुड बी रिडीम्ड एट 100% ऑफ देयर प्रिंसिपल वैल्यू. सर्टिफिकेट्स अपनी 100% प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर रिडीम होंगे. इन द केस ऑफ एनी अर्ली डिसोल्यूशन इवेंट द रिडेम्पशन वुड बी अकॉर्डिंग to adjustment keeping in mind the return accumulation period. Principal amounts of sukuk would be reinvested in ijara and musharaka contracts to form a part of sukuk assets. On the basis of a separate undertaking, IDB has guaranteed payments in respect of assets owed by the trustee by reference to the schedule of payments given by IDB at the time of sale of assets to the trustee. Certificate holders will not have any recourse for payment of any amount in respect of certificates in case the trust assets are exhausted. As such, IDB's guarantee for the rate on the certificates does not comprise a guarantee of payments in respect of the trust certificates, but represents a guarantee inter alia of the amounts scheduled as being payable by the obligors of the underlying transactions in respect of the assets. In the case of any shortfall in return on the sukuk assets, the IDB has agreed to meet the shortfall.
IDB has also agreed to provide an interest-free facility to the STS to ensure timely payment of any periodic distribution amounts on the trust certificates. Thus, the ability of the trust to pay the due on certificates ultimately depends on IDB. On the basis of the purchase undertaking deed between IDB and the trust, the IDB will purchase the sukuk assets on the earlier of the maturity date or the dissolution date. The proceeds will be distributed by the trust among the certificate holders, who will periodically receive a fixed rate of return net of any withholding or any other taxes. Under Islamic banking principles, IDB has to retain the risk of default on the sukuk assets sold to the trust. As such, it is an unconditional and irrevocable guarantor to provide liquidity to the trust to cover costs and expenses, periodic distribution payments, and the principal amount of investment to sukuk holders. तो ये एक डिटेल एग्जाम्पल थी इसकी पोर्टफोलियो सुकूक की, जो कि आईडीबी ने कुछ सर्टिफिकेट्स इशू किए थे. अब ये जो आईडीबी का पूरा जो कि प्रोसेस था, लेट्स हैव अ फ्लो डायग्राम ऑफ आईडीबी मिक्स पोर्टफोलियो सुकूक, जो कि उन्होंने 2003 में इशू किए. तो सबसे पहले तो जो है आईडीबी ओरिजिनेटर ऑफ द ट्रस्ट एसेट. इस ओरिजिनेटर ने आईसीडी बाइज ट्रस्ट एसेट फ्रॉम आईडीबी एंड सेल्स टू एसपीवी. इस ओरिजिनेटर से आईसीडी ने खरीदे, तो यहाँ से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ट्रस्ट एसेट्स टू आईसीडी, वो उसको ट्रांसफर हो गए. फिर ये इन्होंने ओरिजिनेटर को क्या क्या, प्रोसीड्स टू आईडीबी फ्रॉम सेल ऑफ द एसेट्स, उन एसेट्स को सेल करके जो प्रोसीड्स आएंगे वो ओरिजिनेटर को दी. देन अगर आप ये देखिए सेंटर में आईसीडी वकील अपॉइंटेड बाय एसपीवी, इट इज बीइंग मूव टुवर्ड्स सॉलिडारिटी ट्रस्ट सर्विसेज एसपीवी ट्रस्टी. ये एक ट्रस्टी कायम किया सर्विसेज के लिए, ये इसको अप्रोच किया. आईडीबी गारंटर भी इसी को अप्रोच करता है. ये क्या करते हैं, ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं और ये ट्रस्ट सर्टिफिकेट से प्रोसीड्स इन तक आती हैं. और ये इन्वेस्टर्स, ये सब्सक्राइबर्स, ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स जो है इन्वेस्टर ये सब्सक्राइबर्स को दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ट्रस्ट एसेट्स, और ये proceeds from investors who secure the certificates that goes back to the trust certificate, and the line is moving back to the Solidarity Trust Services Special Purpose Vehicle और trustee. तो ये जो पूरा प्रोसेस आईडीबी ने किया था, जो भी हम लोगों ने पहले इसको एक्सप्लेन भी किया, that is being clear from all of this flow diagram. The modus operandi of issuing mixed portfolio sukuk is an effective tool for converting non-marketable and illiquid assets to negotiable instruments having a secondary market, particularly suitable for investment banks and DFIs. So after categories of sukuk, the next thing is tradability of sukuk. The very important thing कि इसकी tradability क्या होगी sukuk की जो issue हो जाता है. Sukuk representing tangible assets or usufruct of such assets can be traded in the secondary market. Secondary market में trade हो सकता है, depending upon the quality, risk and profitability of the securitized assets. उनकी quality क्या है. Tradability is a highly important feature that has to be kept in mind while issuing sukuk as well as for making investment. इसकी tradability जो है बड़ा important feature है, जिसको ज़हन में रखना ज़रूरी है sukuk issue करते हुए और इसकी investment करते हुए. A deciding factor in this regard is whether the sukuk create any debt obligations or they represent an ownership stake in the underlying assets or projects. In the former case, the certificate will not be tradable, while in the later case, it will be negotiable and tradable. As discussed in the case of various categories of sukuk in the light of the AAOIFI standard, the Sharia position of their trading in the secondary market is given below. Secondary market में इनकी शरिया पोजीशन क्या है उसको डिस्कस किए लेते हैं. ट्रेडेबिलिटी ऑफ सुकूक इन द सेकेंडरी मार्केट. मुदारबा और मुशारका सर्टिफिकेट्स और सुकूक, these are tradable at market price after the commencement of the activity for which the funds were raised. तो ये जो मुदारबा या मुशारका सर्टिफिकेट्स हैं ये ट्रेडेबल होते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर उस एक्टिविटी के कमेंस होने के बाद जिसके लिए फंड रेज किया गया. Then the second one is इजारा सुकूक based on freehold existing assets, tradable at market price. ये of course tradable है market price के ऊपर.
इजारा सुकूक ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट सब्जेक्ट टू हेड लीज, ट्रेडेबल एट मार्केट प्राइस और एट अ रेट एग्रीड अपॉन एट द डेट ऑफ रिडेम्पशन। ये मार्केट प्राइस पे भी ट्रेडेबल हैं और उस प्राइस पे भी जिसके ऊपर ये रिडीमेबल हैं, डेट ऑफ रिडेम्पशन पे। इजारा सुकूक बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंजिबल एसेट्स, इजारा सुकूक जो फ्यूचर टेंजिबल एसेट पे इशू किए जाते हैं, दीज आर ट्रेडेबल एट मार्केट प्राइस ओनली आफ्टर द एसेट इज असर्टेन एंड लीज्ड। ये सिर्फ उस वक्त मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रेडेबल हैं जब एसेट असर्टेन हो जाए और लीज हो जाए। सुकूक बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज, सुकूक जो के एग्जिस्टिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज पर बेस करता है, दिस इज ट्रेडेबल प्रायर टू सब लीजिंग ऑफ सच सर्विसेज। ये सर्विसेज की सब लीजिंग से पहले यूज हो सकता है। सुकूक बेस्ड ऑन डिस्क्राइब्ड फ्यूचर सर्विसेज, दीज आर ट्रेडेबल एट मार्केट प्राइस ओनली आफ्टर द सोर्स ऑफ द सर्विसेज असर्टेन। अगर सोर्स ऑफ सर्विस असर्टेन हो जाती है तो मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो सकता है। सलम सुकूक नॉट ट्रेडेबल एक्सेप्ट एट द फेस वैल्यू, सलम सुकूक जो है फेस वैल्यू के बगैर ट्रेड नहीं होता। इस्तस्ना सुकूक ट्रेडेबल इफ फंड्स कन्वर्टेड इनटू एसेट्स एंड बिफोर सेल टू द ऑर्डर। ये ट्रेडेबल है अगर फंड्स एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेल टू द ऑर्डर से पहले। सुकूक इशूड ऑन मुदारबा बेसिस फॉर मुदारबा सेल्स, मुदारबा सुकूक, दीज आर ट्रेडेबल बिफोर सेल ऑफ द गुड्स टू द एंड बायर। ये ट्रेडेबल हैं अगर एंड बायर को सेल नहीं होती उससे पहले। और इफ रिसीवेबल्स, इफ इन्वेंट्रीज मेंटेन्ड आर लेस देन 50%, और अगर रिसीवेबल्स 50% से कम है आफ्टर सेल ऑफ द गुड्स एंड विदाउट इन्वेंट्री ऑफ मोर देन 50%, और 50% इन्वेंट्री से ज्यादा है, ट्रेडेबल ओनली एट फेस वैल्यू ऑफ विद रिकोर्स। तो रिकोर्स के साथ फेस वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो सकते हैं। तो ये तो थी ट्रेडेबिलिटी ऑफ सुकूक इन द सेकेंडरी मार्केट, कि शरिया क्या कहती है कि कौन कौन से सुकूक जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में कैसे कैसे ट्रेड हो सकते हैं। फिर लेट्स हैव द एग्जांपल, ये जो प्रोमिनेंट सुकूक्स हैं जो इशू हुए वेरियस कंट्रीज के अंदर, नेम ऑफ सुकूक, इसकी टाइप भी देखते हैं, फिर अमाउंट क्या थी, उसका पीरियड क्या है और उसकी प्राइसिंग क्या है। मलाइशियन ग्लोबल फर्स्ट MGF, इसकी कैटेगरी, इसकी टाइप थी कॉर्पोरेट और 150 मिलियन US$ का इशू हुआ 5 सालों के लिए। इसकी प्राइसिंग थी फ्लोटिंग रेट ऑन अंडरलाइंग एचारा, इसका मतलब फिक्स नहीं था, दिस वाज फ्लोटिंग रेट। IFC ववासन रिंगीट सुकूक बाय बिल थमानल अजल, इसकी टाइप भी जो है वो कॉर्पोरेट थी और ये 132 मिलियन US$ के इशू हुए 3 सालों के लिए। इसका जो प्राइसिंग थी दैट वाज फिक्स्ड एट 2.82%। मलाइशियन ग्लोबल एचारा सुकूक, इसकी टाइप वाज सॉवरन एंड इट वाज ऑफ 500 मिलियन US$, 7 सालों के लिए इशू हुआ और फ्लोटिंग था, लाइबोर रिलेटेड, इसका बेंचमार्क वाज लाइबोर। कतर ग्लोबल इजारा सुकूक, इसकी टाइप भी सॉवरन थी एंड $700 मिलियन का इशू हुआ 7 सालों के लिए। 0.4% अबव लाइबोर वाज द प्राइस ऑफ दैट। तबरीद ग्लोबल इजारा सुकूक, इसकी टाइप वाज कॉर्पोरेट और अमाउंट इसकी $100 मिलियन थी, 5 सालों के लिए इशू हुआ एंड इट वाज फिक्स्ड एट 6%। सुकूक अल इंतफा मक्का, इसकी टाइप वाज कॉर्पोरेट एंड $390 मिलियन इसकी अमाउंट थी, 24 सालों के लिए इशू हुआ, वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, एंड सेल ऑफ यूजुफ्रक्ट राइट्स एज वीकली टाइम शेयर्स, ये इसकी प्राइस थी। इजारा सुकूक सैक्सोनी एंड हॉल्ट जर्मनी, इसकी टाइप वाज सॉवरन, 100 मिलियन यूरो का इशू हुआ 5 सालों के लिए एंड द प्राइसिंग वाज 1 बेसिस पॉइंट ओवर 6 मंथ यूराइबर, 1 बेसिस पॉइंट 6 माह के यूराइबर पर। दुबई सिविल एविएशन DCA इजारा सुकूक, इसकी टाइप वाज कॉर्पोरेट, $750 मिलियन का इशू हुआ 5 सालों के लिए एंड फ्लोटिंग रेफरेंस रेट ऑन अंडरलाइंग इजारा, इसकी प्राइस थी फ्लोटिंग रेफरेंस रेट अंडरलाइंग इजारा की बेसिस पर। फिर सितारा मुशारका टर्म फाइनेंस इशू हुआ, इसकी टाइप वाज कॉर्पोरेट और ये 360 मिलियन पाक रुपीस का इशू हुआ 5 सालों के लिए और इसका जो प्राइसिंग थी दैट वाज शिरका बेस्ड प्रॉफिट और लॉस। सॉलिडेरिटी ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स IDB,
इसकी टाइप वाज कॉर्पोरेट, 400 मिलियन यूएस डॉलर का इशू हुआ 5 सालों के लिए, एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ मिक्स पोर्टफोलियो आईडीबी गारंटी वाज इट्स प्राइस. देन बहरेन मॉनेटरी एजेंसी BMA, सॉवरेन इसकी टाइप थी, 100 मिलियन यूएस डॉलर का इशू हुआ 5 सालों के लिए और इसकी प्राइस वाज फिक्स्ड एट 4.25%. फिर GOB BMA, इसकी टाइप वाज सॉवरेन, 70 मिलियन यूएस डॉलर के थे 3 सालों के लिए और इसकी प्राइस भी फिक्स 4% थी. फिर BMA एक और सॉवरेन टाइप थी, 80 मिलियन यूएस डॉलर का इशू हुआ 5 सालों के लिए, ये भी फिक्स था 4%. फिर BMA एक और, ये मल्टीपल BMAs मल्टीपल उसके साथ इशू हुए जो कि फिक्स रेट थे. फिर एक और BMA इशू हुआ जो कि सॉवरेन था, यूएस डॉलर 250 मिलियन का 5 सालों के लिए, 0.6% अबव लाइबर इसका फ्लोटिंग रेट था. फिर एक BMA जो कि सॉवरेन था, यूएस डॉलर 200 मिलियन का इशू हुआ 5 सालों के लिए, इट वाज फ्लोटिंग रेट रेफरेंस. फिर BMA सॉवरेन एक इशू हुआ यूएस डॉलर 106 मिलियन का 10 सालों के लिए, फिक्स्ड एट 5.125%. देन फर्स्ट इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक बहरेन ने इशू किया, इसकी टाइप वाज कॉर्पोरेट और यूएस डॉलर 75 मिलियन का ये इशू हुआ 3 सालों के लिए था और लाइबोर रिलेटेड इसकी प्राइस थी. देन मलाइशिया ग्लोबल एजारा सॉवरेन, इसकी टाइप थी, यूएस डॉलर 600 मिलियन का 5 सालों के लिए, 0.9% अबव लाइबोर वाज इट्स प्राइस. फिर दुबई सिविल एविएशन सुकूक एक इशू हुआ, इसकी टाइप वाज आल्सो सॉवरेन और 1000 मिलियन यूएस डॉलर्स का इशू हुआ फॉर 5 इयर्स और इसकी प्राइस वाज फिक्स्ड. फिर दुरत रियल एस्टेट सुकूक सॉवरेन टाइप का इशू हुआ, इसकी प्राइस वाज यूएस डॉलर 120 मिलियन 5 सालों के लिए एंड इसकी प्राइस वाज 1.25% अबव लाइबोर. फिर सरवाक इजारा सुकूक सॉवरेन, यूएस डॉलर 350 मिलियन 5 सालों के लिए, 1.25% अबव लाइबोर. इसी तरह इसी प्राइस के ऊपर ये मुख्तलिफ सालों के ये इशू हुए और एक इजारा सुकूक पाकिस्तान में इशू हुआ, इसकी टाइप वाज सॉवरेन, यूएस डॉलर 600 मिलियन का इशू हुआ 5 सालों के लिए एंड 2.20% अबव लाइबोर इसको रखा गया. देन इश्यूज in terms and structures of sukuk. Notwithstanding the exceptional growth of sukuk in the last 5 years, there are some concerns that have to be taken care of for more vigorous and sustained support for the emerging financial system. Exceptional growth of sukuk को अगर साइड पर रखें पिछले 5 सालों में तो कुछ concerns भी हैं जिनको टेक केयर करना चाहिए इसकी emerging financial system के अंदर. The first and the foremost crucial issue is that of conclusively prefixed rates of return in almost all sukuk. सबसे पहला इशू तो ये जो इसका रेट ऑफ रिटर्न पहले से फिक्स हो जाता है ऑलमोस्ट तमाम सुकूक के अंदर, इसका ख्याल रखना चाहिए. इन सम केसेस इवन विदाउट एनी प्रोविजन फॉर थर्ड पार्टी गारंटी के बगैर. प्रॉफिट रेट्स इन डेफर्ड पेमेंट मुराबहा एंड रेंटल्स इन इजारा आर नो डाउट फिक्स्ड. प्रॉफिट रेट्स जो हैं डेफर्ड पेमेंट मुराबहा के अंदर और रेंटल्स इन इजारा जो हैं वो कोई फिक्स नहीं है, बट वाइल देयर कुड बी डिफॉल्ट इन रिसीट ऑफ मुराबहा रिसीवेबल्स, लेकिन इनमें डिफॉल्ट हो सकता है मुराबहा रिसीवेबल्स में. इन लीजेस देयर इज द पॉसिबिलिटी बोथ द ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड डिफॉल्ट इन रिसीट ऑफ द ड्यू रेंटल. लीजेस के अंदर ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस की या फिर वो जो ड्यू रेंटल है उसके डिफॉल्ट की. The loss of the cost of funds that cannot be recovered under Islamic finance, ये जो opportunity cost of funds की वो Islamic finance में recoverable नहीं होती, and expenses that could be incurred by the lessor as owner of the leased asset may not make it possible to give a return to sukuk holders that is fixed and guaranteed in all respects. This concern is particularly genuine in respect of sovereign sukuk. ये concern जो है ये sovereign sukuk के लिए particularly important है, as a guarantee by the sovereign itself may give rise to doubts about Sharia compliance. Payment of rental is guaranteed in the main contract itself in the form of a contractual obligation on sovereigns to pay the rent. In this regard, the general public interested in Islamic finance and practitioners need to be educated about the flexibilities and the limits of the each mode product so that the integrity of the system is not damaged.
इस पर्पज़ के लिए जो जनरल पब्लिक है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ और लिमिट्स ऑफ ईच मोड या प्रोडक्ट जो उसको अंडरस्टैंड कर सकें और जो इंटेग्रिटी है सिस्टम की वो डैमेज ना हो. The Sharia scholars are unanimous that any prefix return or guarantee of the investment by any of the partners in contractual shirka-based modes is not acceptable. जितने भी शरिया स्कॉलर्स हैं ये यूनानिमसली इस बात पे एग्री करते हैं कि प्री फिक्स रिटर्न नहीं होना चाहिए या कोई गारंटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल शिरका बेस्ड मोड्स में एक्सेप्टेबल नहीं है. According to the AAOIFI's standard on sukuk, a prospectus to issue any certificate must not contain any clause that the issuer is liable to compensate certificate holders up to the nominal value in situations other than torts and negligence. Torts and negligence के बगैर वो उनको compensate करेगा, that should not be there, or that he guarantees a fixed percentage of profit, और वो कोई guarantee करेगा fixed percentage of profit की. So, but the way in which various sukuk are structured and marketed tends to assure the subscribers holders that the issue carries a fixed return rate like any fixed income security in the conventional interest-based structure. One view is that the financial partner can give a part of its own profit or even out of its own wallet to the client partners as in the case of deposits kept on the basis of murabaha. एक व्यू ये है कि वो जो फाइनेंशियल पार्टनर है वो हिस्सा दे सकता है प्रॉफिट का अपने वॉलेट में से क्लाइंट पार्टनर को, जैसे डिपॉजिट्स जो हैं वो मुराबाहा की बेसिस पर रखे जाते हैं. बट इवन देयर द बैंक आर नॉट फ्री, लेकिन यहाँ पर भी बैंक्स फ्री नहीं है. दे कैन अकोमोडेट द क्लाइंट्स अप टू द लिमिट ऑफ अ प्री एग्रीड रेशियो ओनली and any arrangement of payment of any agreed amount of profit out of the bank's own income may dilute the sanctity of the institution of shirka, particularly when adopted as a system. तो उसकी sanctity को भी खतरा लाहक हो सकता है. In the case of sukuk, even this is not possible that the SPVs have to distribute among the sukuk holders the net proceeds of the business in which the raised funds have been used. Ijara has flexibility in the sense that the rental rate can be fixed or floating and the lessor may know in advance his future expected receipts. इजारा में ये flexibility है इस सेंस में कि रेंटल रेट्स जो हैं फिक्स होते हैं या फिर फ्लोटिंग होते हैं और लेसर को पहले से पता होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिसीट्स का. बट द लेसर इज एक्सपोज टू लूजिंग रेंटल कलेक्शन व्हेन द लेसी फेल्स इन टाइमली पेमेंट. लेकिन लेसर जो है वो एक्सपोज होता है रेंटल कलेक्शंस को भी लूज करने का जब लेसी टाइमली पेमेंट्स नहीं कर सकता. तो यही रखते हैं आज के लिए. उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा. बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर थोड़ी सी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने किया क्या. आज के लेक्चर को हम लोगों ने कैटेगरीज ऑफ सुकूक से स्टार्ट किया, जिसके अंदर हर कैटेगरी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया. फिर उसके बाद हम लोगों ने सुकूक की ट्रेडेबिलिटी की बात की और फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की कि दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में कौन कौन से सुकूक कितनी कितनी वैल्यू के इशू हो चुके हैं. फिर इससे रेलिवेंट कुछ इश्यूज डिस्कस किए. कुछ इश्यूज रह गए हैं, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर समरी भी इंशाल्लाह अगली क्लास ही में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इस उम्मीद पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफ़िज़.